Next point is 1.3 Development of Scientific Perspective in Europe and Historiography. यूरोप में हिस्टोरियोग्राफी को साइंटिफिक अप्रोच किस तरह से प्राप्त हुआ और उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो गई, इसके बारे में जानकारी हम इस पॉइंट में लेने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, in 16th and 17th century, European countries and their peoples were under impact of churches, pope and holy texts like Bible. In this time, inductive innovation and development of science was just started. Till the 18th century, Common Era, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ और वहाँ के लोग चर्च, पोप या बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों के प्रभाव में अपना जीवन बिता रहे थे। विज्ञान का ज़्यादा प्रभाव लोगों पे नहीं था। नई इनोवेशंस, रिसर्च को हल्की सी शुरुआत उस वक्त हो चुकी थी, लेकिन 18th सेंचुरी तक यूरोप में फिलॉसफी और साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ। स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय द अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। यूरोपियन स्कॉलर्स को ये यकीन हुआ कि वे साइंटिफिक मेथड का यूज करके सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ का स्टडी कर सकते हैं। European thinkers believed that they could study social and historical truth by adopting scientific method. Now the philosophical discussion focused more and more on the objectivity in history and historiography. European thinkers were arranged many conferences in Europe and America about this matter. फिलोसॉफिकल डिस्कशन का फोकस एक ही चीज़ पे था और वो ये है कि हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी लाई जाए। हिस्टोरियोग्राफी में ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। प्रायर टू द 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. Before 18th century, all European universities were interested discussion about divine phenomena. 18th century से पहले सभी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में दैवी घटनाओं के बारे में चर्चा करने में बहुत बड़ा समय व्यतीत होता था या वे लोग चर्चा करना पसंद करते थे। However, gradually this scenario began to change. मतलब धीरे धीरे सारी सिचुएशन चेंज होने लगी। In 1737 Common Era, the Göttingen University was founded in Germany. This university for the first time had an independent department of history. Later, other German universities also became center of historical studies. सन 1737 में गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी की स्थापना जर्मनी में हुई। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पे हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था। उसके बाद में अलग अलग जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए या हिस्टोरिकल स्टडी के लिए सेंटर्स बनाए गए। Next point is 1.4 Notable scholars. The contribution of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contribution of the few notable scholars. अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे ख्यातनाम विचारवंतों का स्टडी करने वाले हैं जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, हिस्टोरियोग्राफी को एक नया डायरेक्शन देने का प्रयास किया। फर्स्ट नोटेबल स्कॉलर इज रेने डेकार्ट्स। बर्थ ईयर 1596, डेथ ईयर 1650। रेने डेकार्ट्स was the foremost among scholars who insist
on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. René Descartes was a French philosopher. He constantly insisted that the critical examining method be used to check the reliability of historical documents. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रिलायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए क्रिटिकल एग्जामिनिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए, ऐसा इंसिस्ट करने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स उस वक्त थे और उन सब में पहला नाम था रेने डेकार्ट्स का। अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, द फॉलोइंग is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. One of the most important rules regarding the critical examining method of historical documents is given in one of his books, and that is Discourse on the Method. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता वेरीफाई करने के लिए क्रिटिकल एग्जामिनिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में एक अहम ऐसा रूल रेने डेकार्ट्स ने अपने किताब में लिखा है। उस किताब का नाम डिस्कोर्स ऑन द मेथड है और ये रूल साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वो रूल ये है कि Never to accept anything for true till all grounds of doubts are excluded. किसी भी चीज़ से संबंधित सारे डाउट्स जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक उस चीज़ का स्वीकार आपको नहीं करना है। Never accept until clear the doubt.